आप ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਓ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹੋਣ ਦੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਗਾਈਡਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਈਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੂਸ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਾएं बाएं ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੂਸ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੱਸਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਦੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਗੀਤ ਭਜਨ ਜੋ ਬੱਚੇ ਗਾਣ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਪ੍ਰਭੂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਖੁਦਾ ਬਾਪ?
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, परमेश्वर ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿਓ, ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਇਸ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਸੁਣੀਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਸ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਮਝ ਦਿਓ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਡਰ ਆਪਣਾ ਖੌਫ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਐਲਡਰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਆਮੀਨ 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 ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਸਿਸਟਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਜ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਾਂ ਅਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੁਦਾ, ਕਿੰਜ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਾਂ ਅਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੁਦਾ। ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਜੋ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਣਾ, ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਬਣਾ। खुद हो के बादशाह तू मेरे ले दीन बनेया, मैनू उच्चा करन लई सिर तेरा है निमिया। तू खुद हो के बादशाह तू मेरे ले दीन बनेया, मैनू उच्चा करन लई सिर तेरा है निमिया। लिया खुद नू तू चुका मेरे वास्ते खुदा, लिया खुद नू तू चुका मेरे वास्ते खुदा। काबिल नहीं सी मैं जो दिता तू बना, काबिल नहीं सी मैं जो तू दिता है बना। किंज की हिम्मत करा अदा तेरे प्यार दी खुदा, किंज की हिम्मत करा अदा तेरे प्यार दी खुदा। तेरे वर्गा दुनिया ते मैनू यार नहीं मिलिया, मैनू प्यार दे बदले भी किते प्यार नहीं मिलिया। तेरे वर्गा दुनिया ते मैनू प्यार नहीं मिलिया,
मेरे वर्गा दुनिया ते तेरा प्यार नहीं मिलिया। मैं दिता दुनिया नू ठुकरा तेरे वास्ते खुदा। मैं दिता दुनिया नू ठुकरा तेरे वास्ते खुदा। काबिल नहीं सी मैं जो तू दिता है बना। इंज कीमत करा अदा तेरे प्यार दे खुदा। दुनिया दी दौलत ता तेरे अगे है खोटी। तू मैनू मिलिया ਏ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੋਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਖੋਟੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਏ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੋਤੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਲਿਆ ਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਸਰੀ ਖੁਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਭ ਪਾ मेरे नासरी खुदा। काबिल नहीं सी मैं जो तू दिता है बना। काबिल नहीं सी मैं जो तू दिता है बना। किंज कीमत करा अदा तेरे प्यार दी खुदा। तेरे प्यार दी खुदा। तेरे प्यार दी खुदा। आमीन। सचमुच मेरे प्रभु जी ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦਇਆਵਾਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਿਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਉਸ ਲਹੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਹੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਸਮਝ ਤੇ ਅਕਲ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ Yes, ਕਿ Lord. ਮੇਰੇ ਤੇ Amen. ਚੜਾਵਾ ਲੈ Amen. ਕੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਭੇਟਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਚੜਾਵਾ ਮੰਗਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ Amen. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸਤੁਤੀ Amen. ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। Amen. ਹੁਣ ਅਸੀਂ Amen. ਇੱਕ ਗੀਤ Hallelujah. ਸਿਸਟਰ ਰੂਥ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। सिस्टर रूथ सुन पा रहे हो? सिस्टर रूथ सुन पा रहे हो? ਭਾਈ ਲੇਖ ਰਾਜ ਆਪਾਂ ਅਰਬ ਜੋਸ਼ੂਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। हालेलुया जय मसीह ਦੀ ਸਾਥ ਨੂੰ। ठीक है हाँ जी। जय मसीह। ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਆਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਆਈ। ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਆਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਆਈ। ਬਣ ਜਾਓ ਅਸਲ ਈਸਾਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਆਈ। यीशु मसीह दे आओ दुआरे यीशु मसीह दे आओ दुआरे ओ गण बख्शे जावन सारे ओ गण बख्शे जावन सारे होवे खूब सफाई मसीह दी आमद नेड़े आई। आमद नेड़े आई मसीह दी आमद नेड़े आई। सबना रल मिल मते पकाए सबना रल मिल मते पकाए। बादशाहां हुण जंग रचाए बादशाहां हुण जंग रचाए। कर दे खूब लड़ाई मसीह दी आमद नेड़े आई। आमद नेड़े आई मसीह दी आमद नेड़े आई।
ਅੰਜੀਲੇ ਮਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਿਆਨ, ਅੰਜੀਲੇ मैं ਮਤੀ प्रेयर ਵਿੱਚ चाहना बात ਹੈ कर रहा हूँ ਬਿਆਨ, जी ਕਿਆਮਤ चल ਵਾਲੇ ਸਭੀ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਸਭੀ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਆਈ, ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਆਈ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਆਈ, ਆਮਦ ਦੀ ਹੁਣ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ, ਆਮਦ ਦੀ ਹੁਣ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ, ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਹੈ ਮੱਤ ਹੈ ਮਾਰੀ, ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਮੱਤ ਹੈ ਮਾਰੀ, ਮਸੀਹ ਨਾ ਕਰੋ ਰਸਾਈ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਆਈ, ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਆਈ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਆਈ, ਬਣ ਜਾਓ ਅਸਲ ਈਸਾਈ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਆਈ। ਆਮੀਨ। प्रभु की महिमा होवे, प्रभु की स्तुति होवे। सचमुच प्रभु की आमद जिहड़ी है बिल्कुल नज़दीक है प्रभु की आमद, क्योंकि वो आमद वाले जिहड़े निशान पवित्र बाइबल दे विच लिखे हुए ने वो सारे पूरे होए ने। बादशाह ने सचमुच जंग लड़ाई हुई है। यूक्रेन की लड़ाई जिहड़ी वो सिम्पटम सानू दस रही है कि उदों ही सानू पता लग गया सी कि प्रभु की आमद जिहड़ी है नज़दीक है। प्रभु की महिमा होवे। खुदावंद दे जिहड़े दसे मत्ती दे विच जिन्ने भी मत्ती दी अंजील दे विच जिन्ने भी निशान दसे होए ने वो सारे पूरे हो रहे ने ते प्रभु दे विच सानू अगे वधना चाहिदा है खुदा दे कलाम दे विच, ताकि असीं अपने आप नू ओ प्रभु कोलों मसा मंगीए, ओ तैयारी दा मसा मंगीए कि जदों प्रभु आए ते असीं अपने आप नू तैयार पाए जाइए ते उस प्रभु दे लायक बन जाइए कि खुदावंद सानू छड्ड के ना चल जाए कि असीं मूर्ख कुवारियां ना बन जाइए, समझदार कुवारियां दी तरह अपने वो सारे हथियार पहन लिए, वो अपना मसा, वो अपना पवित्र आत्मा दा तेल जिहड़ा उसनू अपनियां कुप्पियां विच भर के रखीए। जद प्रभु आए तां असीं बिल्कुल तैयार पाए जाइए ते प्रभु दे नाल जाइए। प्रभु सानू सारियां नू आशीष ते बरकत दे। सचमुच इह गीत दे विच जो लिखिया है सच्चाई है, आमद जिहड़ी है परमेश्वर दी बिल्कुल नज़दीक है। प्रभु दी महिमा होवे। हुण आपां सिस्टर रूथ नाल एक गीत गावांगे, उस तो बाद आपां कलाम च जावांगे। हालेलुया। प्रभु की महिमा के हम एक गीत गाएंगे। ले तुरिया यहोवा मूसा नू ले तुरिया, ले तुरिया यहोवा मूसा नू ले तुरिया, ना डरिया फिर मूसा किसे तू ना डरिया, ना डरिया फिर मूसा किसे तू ना डरिया, ले तुरिया यहोवा मूसा नू ले तुरिया, खुदा मिस्र विच मरी भेज के अपना बल विखाया, खुदा मिस्र विच मरी भेज के अपना बल विखाया, मार मिस्र दे पिलोटे सारे फिरौन दा सिर झुकाया, मार मिस्र दे पिलोटे सारे फिरौन दा सिर झुकाया, ना मरिया कोई खुदा दा बंदा, ना मरिया कोई खुदा दा बंदा, ना मरिया, ले तुरिया यहोवा मूसा नू ले तुरिया, ना डरिया फिर मूसा किसे तू ना डरिया, जद इज़राइल फतेह पाने नू कोमा ते सी चढ़ दे, जद इज़राइल फतेह पाने नू
कोमते सी चढ़ दे सदा यहोवा नाल सिखड़दा जंग जदू लड़ दे सदा यहोवा नाल सिखड़दा जंग जदू लड़ दे ना हरिया इज़राइल किसे तो ना हरिया इज़राइल किसे तो ना ले तुरिया यहोवा मूसानु ले तुरिया ना डरिया फिर मूसा किसे तो ना डरिया सच ते जिंदा यहोवा जिसने सब वादे पुगाए सच्चा ते जिंदा यहोवा जिसने सब वादे पुगाए दूध शहद दिया नदियां जीते ओथे सब पहुंचाए दूध शहद दिया नदियां जीते ओथे सब पहुंचाए ना थुड़िया कदे कुछ भी किते भी ना थुड़िया कदे कुछ भी किते भी ना थुड़िया ले तुरिया यहोवा मूसा नु ले तुरिया ना डरिया फिर मूसा किसे तो ना डरिया ले तुरिया यहोवा मूसा नु ले तुरिया हालेलुया हालेलुया। प्रभु की महिमा होवे। भाई किशन जैमसी की भाई किशन जय मसीह की भाई जी, जय मसीह की। प्रभु भाई जी आशीष हम प्रकट दे सारे भाई ने, जय मसीह, सारे भाई बहन ने जय मसीह की। जैमसी की ब्रदर जी, अब हम आपके साथ दुआ करेंगे प्रभु की हजूरी में, उसके बाद हम कलाम में जाएंगे भाई विशाल के साथ। आमीन आमीन। आइए खुदावंद खुदा के हुजूरी में सिरों को झुकाते हैं और जो सर्व सामर्थ्य है, सर्वशक्तिमान है, उसी से मांगते हैं कि वो हमारे समझ को खोले और आज हम सबसे बातचीत करें अपने वचन के द्वारा। आइए सिरों को झुका करके, हृदय को नम्र करके और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र पवित्र अति पवित्र परम पिता प्रभु परमेश्वर, राजाओं का राजा महाराजा परम प्रभु परमेश्वर, अल्फा र ओमेगा आदि र अंत अगिलो र पछिल्लो, जो सनातन का पिता प्रभु, आपके समीप इन प्यारे भाई बहन के साथ में मैं आपके समीप आता हूं प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पवित्र नाम में। जी प्रभु, धन्यवाद के साथ में मैं आपके समीप आता हूं, क्योंकि प्रभु आपने होने दिया कि प्रभु हमें आज का दिन दिया प्रभु, और सारे कामकाज करने आपने ही सहायता मदद की और आपने हमें सुरक्षित साथ रखा प्रभु। दुष्ट की चाल युक्ति से, नाना प्रकार के ट्रैप से हमें बचा के रखा प्रभु। जी प्रभु, हमारे योग्यता से नहीं प्रभु हम यहाँ एकत्र हुए, पर आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी धार्मिकता और आपकी दया के कारण है प्रभु। जी प्रभु, आप महान है प्रभु, आप करुणा का सागर है प्रभु। जी प्रभु, आप धर्मी है प्रभु। जी प्रभु, आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु, इसीलिए प्रभु आपने हम पर अनुग्रह किया और हमें ये फजल दिया कि हम आपके समीप आए प्रभु। व्यवस्था की पुस्तक 4:10 का बी पार्ट में जैसा लिखा है, मेरे जनों को एकत्र करो कि मैं उनसे बातचीत करूं। जी प्रभु, आपके वचन में जी प्रभु व्यवस्था पुस्तक की 4:10 में लिखा है कि एकत्र करो जिससे कि मैं उनसे बातचीत करूं। जी प्रभु, आपने एकत्र किया प्रभु, इसीलिए कि हमें हमसे बातचीत करने के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, आप अपना भेद रहस्य हमसे प्रकट करना चाहते हैं प्रभु। आप हमसे अपने आज्ञाओं को
हमें सिखाना समझाना चाहते हैं प्रभु, और आप हमें आपकी उस स्वर्गीय स्थान में जाने योग्य के होने के लिए वचन से भरी पूरी करना चाहते हैं प्रभु। इसीलिए आप हमें यहाँ एकत्र किए प्रभु। हो प्रभु, आपने जब हमें एकत्र किया प्रभु, आप हमें आशीष से भरना चाहते हैं प्रभु, आप अपनी भलाई से भरना चाहते हैं प्रभु हमें। जी प्रभु, आपका प्रेम से भरना चाहते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हमें भर दे प्रभु। हम जैसे आए हैं, हम खाली हो, हृदय खाली होकर के आए हैं प्रभु, पर यहाँ से हम भरी पूरी होकर के आपके वचन से, आपके प्रकाशन से, पवित्र आत्मा से और आपके प्रेम से भरी पूरी होकर के जी प्रभु, हम यहाँ से आपको धन्यवाद करते हुए, आपको महिमा करते हुए लौटने वाले हो सके प्रभु। सिखाना प्रभु, सहायता मदद करना प्रभु। जी प्रभु, हम योग्य नहीं है प्रभु, हमारे गलती गुनाह इतना है कि हम स्वर्ग की ओर नजर उठा करके भी देखने योग्य के नहीं है प्रभु, पर आप क्षमावान है प्रभु, दयावान है प्रभु। आप हम पर दया करते हैं, क्षमा करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आपकी धार्मिकता के कारण ये संभव हुआ प्रभु। जी प्रभु, हमारे जो भी गलती गुनाह हुई है प्रभु, हम कबूल करते हैं प्रभु, उन सब को आप क्षमा करें प्रभु, और हमें प्रभु आगे गलती होने से, गलती में बने रहने से हमें बचा के रखना प्रभु, जिससे कि हम निष्कलंक, निष्खोट, दाग रहित, ब्लेमलेस हम आपके समीप, हाँ प्रभु, यीशु ख्रिस्ट के सामने खड़े होने योग्य के हो सके प्रभु। आमीन सिखाएं आमीन प्रभु, सहायता मदद करें प्रभु, अनुग्रह कृपा करें प्रभु। हो प्रभु, हमारे योग्यता को आप जानते हैं, हमारे घटी कमी को आप जानते हैं प्रभु, हमारे जरूरतों को आप जानते हैं प्रभु। आपसे कोई चीज छिपा नहीं है प्रभु। हम तो इवन मांगने से पहले, हमारे हृदय में आने से पहले आप जानते हैं कि हमारे क्या मनसा है और हम क्या मांगने वाले हैं प्रभु। आपसे कुछ भी छिपा नहीं प्रभु। और प्रभु, जो भी भाई बहन यहाँ वचन के प्रार्थना के साथ आया है, उनको वचन से भर देना। जो प्रकाशन के प्रार्थना के साथ आपसे मांग रहा है प्रभु, उनको प्रकाशन से भर देना प्रभु। जो पवित्र आत्मा चाहता है प्रभु, पवित्र आत्मा मांगता है, उनको पवित्र आत्मा से भर देना प्रभु। जी प्रभु, जो आपके साथ चाहता है प्रभु, आपके साथ पवित्र होकर के चलना चाहता है, उनको पवित्र करके आपके साथ चलने योग्य बनाना प्रभु। जी प्रभु, जो कोई अगर बंधन में है तो प्रभु उसको छुड़ा लेना प्रभु। जिनके घुटने निर्बल है उनको सहारा दे के उठाना प्रभु। जो जकड़े हुए हैं उनको छुड़ा लेना प्रभु। जी प्रभु, जो दुख कष्ट बीमारी में है प्रभु, आपके शिफा वाला वो पसरे हुए हाथ से प्रभु शिफा देना प्रभु। हालेलुया प्रभु। ये संगति प्रभु आपके महिमा का और हमारे उद्धार का कारण हो प्रभु। आपके दास, हमारे प्यारे भाई, जिनको आज आपने चुना है हम पर आप बात करने के लिए प्रभु, उस भाई को, प्यारे भाई को, भाई विशाल को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपका महिमा के लिए हाँ प्रभु, उस भाई को इस्तेमाल करना प्रभु। भाई के होठों को मसा करना प्रभु, कि वो आपकी सिर्फ और सिर्फ आपके शुद्ध पवित्र वचन जी प्रभु, वो भाई के होठों से निकले प्रभु। भाई के होठ हिले प्रभु, पर वचन आपके हो प्रभु। जी प्रभु, सहायता मदद करें, अनुग्रह कृपा करना। भाई को आशीष से भर देना प्रभु, प्रकाशन से भर देना प्रभु, वचन से भर देना प्यारे भाई को। जी प्रभु, वहां सहायता मदद करना। जी प्रभु, जो गीत आपके हुजूरी में गाए गए प्रभु, वो कबूल हो प्रभु। हम टूटे फूटे होठों से जैसे भी आपको महिमा के लिए गा रहे हैं प्रभु, वो आपके हुजूरी में कबूल हो। उन सबको आशीष देना जो आपकी महिमा के लिए, स्तुति के लिए वो प्रभु गला खोलते हैं। जो कोई ताली बजाते महिमा के लिए, जी प्रभु, उन सबको आशीष देना प्रभु। और हम सब हाँ प्रभु यहाँ एकत्र हैं, उन सबको आशीष देना। जो यहाँ सुन रहे हैं उनको भी आशीष देना, और जो आगे जुड़ेंगे और बाद में भी सुनेंगे उनको भी आशीष देना प्रभु, भर देना प्रभु। प्रभु, आपका दास, हमारा प्यारा भाई आर के जोशुआ इस कार्यक्रम को लीड करते हैं, गाइड करते हैं। आपके आत्मा में भरीपूरी होकर के प्यारे भाई को आशीष देना प्रभु, भाई के घराने को आशीष देना प्रभु, सहायता मदद करना प्रभु। जी प्रभु, इस प्लेटफॉर्म को जो कि आपने ब्लेस्ड किया है प्रभु, जिस प्लेटफॉर्म से जो भी यहाँ जुड़ रहे हैं प्रभु, इस प्लेटफॉर्म को आपने जिस भाई को पवित्र आत्मा से भरीपूरी होकर के अगुवाई करी प्रभु, कि ये एक प्लेटफॉर्म बनाए, उस भाई को आशीष देना प्रभु। हमारे जो अगुआ है
उन सब भाइयों को आशीष से भर देना प्रभु, जिससे कि वो हमें सही राह में लीड कर सके, गाइड कर सके, आपके पवित्र आत्मा से भरीपूरी होकर के, आपके वचन से भरीपूरी होकर के सहायता मदद करना प्रभु। हर एक भाई बहन को आशीष से भर देना प्रभु। हमारे आपका दास, हमारा प्यारा भाई भाई इवाल फ्रैंक, जो कि अभी अस्वस्थ है प्रभु, वो आप जानते हैं प्रभु। आपने उनको हम पर, हाँ प्रभु, एक शिक्षक के रूप में जी प्रभु हमें वचन सिखाने के लिए, वचन का रहस्य खोलने के लिए आपने नियुक्त कर रखे हैं प्रभु। प्यारे भाई को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। प्यारे भाई फ्रैंक को, इवाल फ्रैंक को आप आशीष से भर देना, आपके सामर्थ्य वाले हाथ से प्रभु छू करके भाई को शिफा देना कि वो आपकी महिमा कर सके, आपके वचन का वेद रहस्य प्रकट कर सके प्रभु, जिससे कि आपके चुने हुए भेड़ आपके गले में आ सके। सहायता मदद करना प्रभु। विश्व भर में जो वर्ल्ड वाइज आपके दास सेवक है प्रभु, आपके वचन को लिए फिरते हैं प्रभु, उनको आपके आत्मा से भर देना, आपके प्रकाशन से भर देना कि प्रभु, आपके सामर्थ्य से भर देना, जिससे कि वो हो प्रभु आपके वचन पृथ्वी के अंतिम छोर तक पहुंच सके, और जो अंतिम जो चुना हुआ है वो भी आपके गले में आ सके, और आपका आगमन, आपका आमद नजदीक हो सके। जी प्रभु, जैसा कि अभी भाई ने भी गीत में गाया, प्रभु अनुग्रह कृपा करना प्रभु, क्योंकि हम जो आपके वचन को हो प्रभु प्रेम करते हैं, आपसे चाहते हैं प्रभु, जो कोई प्रभु का आमद का तैयारी में है प्रभु, उनको तैयारी वाला आत्मा से, वचन के भरीपूरी वाला तैयारी वाला आत्मा से भर देना कि आपके आमद पर हम तैयार पाए जा सके प्रभु, और आपके साथ में बादल में उठाए ले जाने योग्य हो सके प्रभु। और स्वर्ग में जो कि आपके वचन में, प्रकाशन की पुस्तक में हो प्रभु 19 में आया है प्रभु, हम उस बुलाए हुए मेमने के हो प्रभु विवाह भोज में बुलाए हुए वो धन्य के जन के साथ में सम्मिलित हो सके। सहायता मदद करना, सिखाना प्रभु, हर एक चीज प्रभु हम आपकी महिमा के लिए, आपकी योजना पूरा हो सके इसके लिए मांगते हैं प्रभु। हमें नम्र विनम्र और हलीम बना के रखना कि प्रभु हम आज्ञाकारी होकर के आपके साथ में शुद्ध पवित्र होकर के आपके साथ में चलने योग्य हो सके, सिखाएं, सहायता मदद करें प्रभु। हर एक चीज आपकी इच्छा, आपकी मर्जी अनुसार पूरा हो प्रभु, आपकी मर्जी हमारे जीवनों में पूरा हो प्रभु। हाँ प्रभु, सिखाएं प्रभु, हमें आपकी मर्जी पूरा करने को, आपकी इच्छा पूरा करने को हमें सिखाएं प्रभु, सहायता मदद करें। हर एक चीज आपके हाथ में सौंपते हुए, विशेष करके ये वचन का जो कार्यक्रम है आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। आप हमें हमारे कानों को खोलना, हमारे हृदय को खोलना प्रभु, जिससे कि हम वचन को कानों से सुन करके हृदय की गहराई में स्टोर कर सके, हलीम होकर के, वो नम्र होकर के, जैसा कि प्रेरित के पहली प्रेरितों के समय में हुआ था प्रभु, वैसे हमारे लिए भी ये वचन हो प्रभु बहुत सारे फल लाने वाला हो सके प्रभु, जो कि मसीह का जो फल है उसी को हम फलाने वाले हो सके, बहुत से फलों से भरे पूरी होने वाले हो सके। जी प्रभु, क्योंकि आपका वचन बताता है जो फल नहीं लगा है उस डाली को, उस पेड़ को आपने श्राप दिया प्रभु। हो प्रभु, हम भरी पूरी होना चाहते हैं फलों से, सिखाएं, सहायता मदद करें। हर एक चीज आपके हाथ में सौंपते हुए आपके दास हमारे प्यारे भाई विशाल को, जो कि वचन देने जा रहे हैं, प्यारे भाई को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करता हूँ, आदर मान महिमा के योग्य प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पवित्र सर्वोच्च सामर्थ्य मीठी जलाल नाम में, आमीन। आमीन। प्रभु आशीष दे भाई आपको, ब्लेस करे और प्रभु आपको दुआओं प्रार्थना में आगे बढ़ाए। और भाई विशाल के साथ हम पुत्र कलाम में जाएंगे। भाई विशाल। जी प्रभु में प्यारे भाइयों आप सबको सलाम, और प्यारी बहनों आप सबको भी सलाम, और जो बच्चे हैं उनको खुदाबंद बरकत दे, आशीष दे, और परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज हम सब सलामती में हैं, और एक दफा फिर हमें ये परमेश्वर की सामर्थ से आज का दिन मिला है कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में इकट्ठा हों और खुदा की महिमा करें। हम अपनी महिमा नहीं चाहते, उसकी चाहते हैं। और ब्रदर राजेंद्र जी, ब्रदर सैम भी हमारे संग जुड़े हुए हैं, और मैं चाहता था कि सिस्टर जो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं
वो यहाँ पे है। अलीशा, मेरी आवाज आ ब्रदर रही है आप सबको? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ब्रदर है, ब्रदर सैम ਦਾ नहीं है नंबर। नहीं नहीं, आई थिंक ये सिस्टर सिस्टर सुरिंदर ਦਾ नंबर, सुरेंद्र आई के थिंक सो। बेटे का नंबर है। ओके ओके, ठीक है, या मैं सैम लिखा हुआ ना, मैंने कहा वो सैम है। आई थिंक सो, ठीक है, आई चलो थिंक ठीक है, सो। फिर तो हम यू सब कैन ये हिंदी और कंफर्म। पंजाबी समझने वाले हैं। थैंक यू हाँ, सिस्टर, यू गॉड कैन। ब्लेस यू। आपका ओके जी, धन्यवाद। बाय बाय। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। तो आइए आज हम अपने परमेश्वर के पास जाते हैं और देखते हैं आज प्रभु ने हमारे लिए, अपने चाहने वालों के लिए क्या तोहफे रखे हैं। तो आप सब लेना चाहते होंगे, मैं आमीन। तो लेना चाहता हूँ। तो प्रभु में आप सबको सलाम, प्रभु आपको बहुत सी बरकत दे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर खुदाबंद यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने हमारे लिए प्रभु जी उस कब्र में से प्रभु जी खुदाबंद खुदा जीवन रूपी प्रभु जी परमेश्वर उद्धार का कार्य किया, और प्रभु जी हमें भी उस खुदाबंद खुदा अनुग्रह में बुलाया है। प्रभु प्रभु होने दे परमेश्वर की आज हम सब परमेश्वर जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, प्रभु पूरी दिल की खराई से आपको धन्यवाद करें, और प्रभु जी दिल की गहराइयों से आपको ही प्रभु जी धन्यवाद करें। प्रभु जी खुदाबंद, हम में से अगर कोई भाई बहन प्रभु जी कमजोर है, किसी की कोई परेशानी है, जब प्रभु जी कोई भी ऐसा बोझ है जो खुदाबंद वो खुदा बाप सिर्फ और सिर्फ तेरे हाथों में रखना चाहता है, प्रभु आज उसे बल दे मेरे खुदा, ताकि वचन की जो ताकत खुदाबंद खुदा, जब प्रभु जी आपके चेले प्रभु जी आपको छोड़कर चले गए परमेश्वर, जब खुदाबंद खुदा उन पर वो 2 की प्रभु 38 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर वो आग की सी फटती हुई जीवें उन पर उतरी, और उन्होंने आकाश में से एक ऐसी आंधी और तूफान देखा, और परमेश्वर की आग उन पर आके ठहर गई, और उन्होंने परमेश्वर आपकी सच्चाई को सब लोगों में बयान कर दिया। प्रभु जी आज खुदाबंद तेरा ऐसा अनुग्रह प्रभु जी इस झुंड पे, इस प्रभु जी खुदाबंद प्लेटफॉर्म पे होने पाए प्रभु जी, और जो भाई बहन प्रभु जी बाद में भी प्रभु अगर ये आपका अनुग्रह हुआ तो प्रभु जी जो भी सुने, तो प्रभु जी मेरी नहीं आप ही की पाक और नेक इच्छा पूरी हो प्रभु। होने दे प्रभु जी कि प्रभु मेरे होंठों को छूना प्रभु जी, खुदाबंद मेरे मन के कोई भी ख्याल मेरे मुंह से ना निकले प्रभु। परमेश्वर जो आपकी पाक आत्मा जो आपके खुदाबंद खुदा लोगों को आपके पास ले जाती है प्रभु, आज उसका कार्य होने पाए। प्यारे परमेश्वर इन भाइयों इन बहनों को ब्लेस करना, इनके जीवनों को प्रभु जी छूना मेरे खुदाबंद, और ये होने दे प्रभु जी ये फलों से लग जाए मसीह यीशु के नाम में, आमीन। तो सिस्टर रूथ ने बहुत अच्छा गीत गाया कि मूसा का एक गीत था कि ले चलिया ना, और ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी है जो हमें इस धरती में से स्वर्ग की तरफ ले चला है। हम जब मूसा की किताब पढ़ते हैं, जब हम निर्गमन को पढ़ते हैं, तो वहां पर बहुत सी ऐसी बातें हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा के संग संग रहा, लेकिन बहुत से ऐसे भाई बहन भी थे जिन्होंने कहा कि क्या परमेश्वर का आत्मा मूसा के संग ही रहता है, क्या वो हमसे बात नहीं करता, क्या वो हमें नहीं पसंद करता, क्या वो हम नहीं उसे जानते, हम उससे प्रार्थना नहीं करते, हम नहीं उसका दिया हुआ मन्ना खाते, हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, क्या वो बादल हमारे ऊपर ना बना रहता है, क्या वो आग हमें दिखाई नहीं देती। बहुत सी ऐसी उन्होंने कुड़कुड़ाने वाली बातें की, लेकिन मूसा ने बदले में कुछ नहीं कहा। मूसा ने उन भाइयों उन बहनों की गलतियों को कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर जब कार्य करता है तो खुदा का जो कार्य होता है ना, उस कार्य में परमेश्वर की एक योजना होती है, परमेश्वर के कुछ नियम होते हैं जिसको मूसा फॉलो कर रहा था, और मूसा चाहता था कि मूसा की बात को वो सब जो प्यारे भाई बहन है वो सुने। उन्होंने नहीं सुना, जब उन्होंने नहीं सुना मूसा बीच में आया, परमेश्वर ने कहा कि नहीं मूसा तू साइड पे हो जा, मैं इनको सजा दूंगा। उसने कहा नहीं परमेश्वर अगर ऐसा करेगा तो जीवन की किताब में से मेरा नाम काट दे। देखिए कैसा प्यार वो आगू अपने भाइयों अपनी बहनों से करता था। अब जो सामने उसके पहले
भाई बहन थे जो उसके खिलाफ गुनाह कर रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि ये आगू उनसे ऐसी मोहब्बत कर रहा है कि वो परमेश्वर के आगे खड़ा हो रहा है कि नहीं खुदा, अगर तू इनको सजा देगा तो मुझे भी मार दे, मेरा नाम भी काट दे। परमेश्वर का क्रोध ठंडा हो जाता है। खुदा अनुग्रह करता है, खुदा देखता है कि नहीं, उसमें एक ऐसा प्यार है कि जो प्यार ना, पता हम किस में देखते हैं ऐसा प्यार? हमारा ऐसा प्यार जो है ना, हमें बाइबल के दूसरे हिस्से में मिलता है, जो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जब उसके प्यारे चेले जो उसके पास रहते थे, प्रभु यीशु मसीह के संग उठते थे, बैठते थे, खाते थे, मौजे करते थे, और वो भी दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार रखते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह का जाने का समय हुआ, तो उन्होंने जो बलिदान इस धरती को दोबारा से इस धरती पर अपना अनुग्रह लाना, दोबारा से इंसान को एक नया जीवन देने के लिए जो एक विधि थी, उस विधि को परमेश्वर ने जो पूरा करना था, तो वो ही चेले क्या हुए, उससे दूर हो गए, क्योंकि परमेश्वर उन्हें उस वादे की जमीन में लेके जाना चाहता था जो स्वर्ग में है। मूसा भी यहाँ पर ऐसा ही कार्य कर रहा है, लेकिन मूसा की ये नहीं सुन रहे। मूसा परमेश्वर से भी इनके लिए झगड़ रहा है कि ये मेरे प्यारे भाई बहन है, इनको अभी समझ नहीं है कि जब परमेश्वर की उस योजना को समझेंगे तब इन्हें मालूम होगा। परमेश्वर ने मूसा की बात सुनी, परमेश्वर ने मूसा को अपने हुक्म दे दिए। और जब हम निर्गमन 20 में पढ़ते हैं, निर्गमन 20 में परमेश्वर अपने हुक्म दे रहा है, 10 हुक्म। जब वो 10 हुक्म में से एक हुक्म तोड़ते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, फिर परमेश्वर उन्हें व्यवस्था दे देता है कि नहीं, ये व्यवस्था जो है, व्यवस्था इन्हें दो ताकि ये हर एक चीज को समझ सके, हर एक बात इन्हें समझ आ सके कि ये जो इजरायली हैं, कि मैं इन पर इतनी करुणा कर रहा हूं, इतने करीब हूं इनके, कि बस अगला दिन ये मेरे पास होंगे। लेकिन वो जो 40 दिन का सफर था, परमेश्वर से बलवा कर करके उन्होंने वो 40 दिन का सफर जो अपनाया ना, वो 400 सालों 40 सालों का उन्होंने बना लिया, सॉरी 40 सालों का उन्होंने वो सफर बना लिया। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि बहुत से प्यारे भाई बहन जो मूसा के संग निकले थे, जो योशुआ के संग निकले थे, जो कालिब के संग निकले थे, वो रास्ते में ही मर गए, वो रास्ते में ही इस धरती पर सो गए, वादे की जमीन पर उनके बच्चे गए। आज भी ऐसा ही होता है, आज भी ऐसा होता है कि जब एक मसीह भाई बहन परमेश्वर में बढ़ते हैं, कई दफा उन्हें परमेश्वर का दास ना बड़ा हल्का नजर आता है कि नहीं, ये परमेश्वर का दास जैसी बातें करता है, क्या हम नहीं कर लेते? क्या ये हमारे जैसे नहीं है, हमारे जैसे नाक, मुंह, हाथ, पैर? लेकिन उसमें एक अलग बात होती है, वो परमेश्वर से हृदय से प्यार करता है, और वो अपने भाई बहनों से भी ऐसा ही प्रेम करता है। वो छुपा नहीं सकता कुछ भी, लेकिन वो अपने किसी भी भाई बहन को कमजोरी में पाकर रात को सो भी नहीं सकता, क्योंकि प्यार ऐसा ही है। अगर आप कहते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मुझे आप बता सकते हैं, कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके बता सकता है, प्रभु यीशु मसीह ने किस लिए रात रात भर प्रार्थनाएं की? हमारे लिए की हैं वो। प्रभु ने हर एक बात जो जहां पर हम गुनाह करेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बात परमेश्वर के आगे रखी है कि पिता ये कमजोर पड़ जाएंगे, प्रभु तू इन पर सामर्थ्य उड़ेल प्रभु, कि ये तेरा कार्य कर सके, कि इस पैगाम को हर एक उस मनुष्य तक ले जाए कि जो जीवन परमेश्वर तेरे अनुग्रह से है प्रभु, वो शैतान चुराने ना पाए। शैतान अपना कार्य उसी स्पीड से कर रहा है, लेकिन मसीह के कार्य में बहुत सी बाधाएं, बहुत सी ऐसी भूखमरियां आ जाती हैं, बहुत सी ऐसी परेशानियां आ जाती हैं कि हम आपस में ही छोटी छोटी बात के लिए ना, कई बार क्या होता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उस कमजोरी में खुदा को धन्यवाद करें कि प्रभु तेरा धन्यवाद, कि प्रभु हम पर कुछ अगर ऐसा हुआ है कि मान लो कि हमारे घर का प्रभु खाना खत्म हो गया है,
हमारे पास कल का खाना भी नहीं। प्रभु तेरा धन्यवाद प्रभु, हम फास्टिंग रखेंगे परमेश्वर, पर हम क्या करते हैं, हम कुड़कुड़ा लेते हैं। तो हमारा जो आत्मक बल है ना, जहाँ मनोबल है, वो बहुत कम है, बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। वो किस लिए कमजोर पड़ जाता है? क्योंकि हमारी नजर ना कहीं मसीह यस्सु की तरफ से हटकर ना दुनिया की बातों में, दुनिया की अभिलाषाओं में आ जाती है। जब भी हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, हमारे जीवन में बहुत से ऐसे गुनाह पैदा हो जाते हैं। क्योंकि जब भी, ये भी मैं आज एक भाई से बात कर रहा था कि जब पानी चलता रहता है ना, तो उस पानी में जीवन होता है। वो पानी जो है ना, वो पीने के योग्य होता है, वो जीवन के योग्य होता है। लेकिन जैसे ही उस पानी को हम एक जगह पे खड़ा कर देंगे ना, तो वो पानी में ना अलग अलग तरह के जीव पैदा हो जाएंगे, जो उस पानी को दूषित कर देंगे। वो पानी फिर पीने के योग्य नहीं रहेगा। ऐसा ही एक मसीह जीवन है। आपने हर दिन, हर रोज परमेश्वर के संग बनना है। आपने हर रोज अपना जीवन परमेश्वर के संग करेक्ट करना है। ये मेरी भी ड्यूटी है। ये नहीं कि अगर मैं अपने मुंह से आज बोल रहा हूं तो विशाल फ्री है इन बातों से। ये विशाल की भी ड्यूटी है। जो भाई विशाल है, ये उसके ऊपर भी लागू होता है कि वो भी इन बातों पर प्योर अमल करेगा। वो बोलने वाला ही नहीं होगा कि हाँ, कि उसने सिर्फ बोलना है, उसने सिर्फ आपके ऊपर अपना लेक्चर देना है। नहीं, खुदा ने उससे भी आपकी ही लाइन में खड़ा किया है भाइयों। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज हम सबसे ज्यादा अच्छा कैसे चल सकते हैं? एक दूसरे का हाथ पकड़कर। देखिए, मूसा का हाथ जो है ना, वो योशुआ ने पकड़ा था। और हम सब जानते हैं, हमने सब ने बाइबल पढ़ी है, जब योशुआ ने हाथ पकड़ा था ना, तो योशुआ का हाथ जो है ना, वो किसने पकड़ा था? बताओ मुझे, कोई बताएगा? यहोवा परमेश्वर। कालेब ने योशुआ का हाथ पकड़ा था, और परमेश्वर ने तो उनको संभाला ही था। तो ये सब भाई जो थे ना, उसी परमेश्वर से प्रेम करते थे, और ऐसा प्रेम करते थे कि मानो कि परमेश्वर उनके सामने है और वो परमेश्वर की सेवा करना चाहता है। परमेश्वर, देखिए, उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए। बाइबल हमें हर समय सीखने के लिए आकर्षित करती है कि हमें हर रोज इसमें से ऐसे हीरे मोती जो हमारे जीवन में हमारी कमी को दूर कर दे, हमारे अंधेरेपन को दूर कर दे, हमें इसमें से लेकर अपने जीवन में बनाने पड़ेंगे, ताकि एक दिन ऐसा आए कि हम पूरे सज जाएं, सवर जाएं, और परमेश्वर हमें जब लेने आए तो खुदा दूर से देख ले कि वो है मेरी दुल्हन जो तैयार है। मत्ती की किताब में एक 10 कुंवारियों का दृष्टांत है, आप सब जानते हैं। 10 कुंवारियों में से 5 की तो ऐसी बात है कि वो दूल्हे के साथ गई, लेकिन 5 ऐसी भी थी जो दूल्हे के साथ नहीं गई। दूल्हे ने बोल दिया, कहता नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। तो हमारे जीवन में कैसा, कभी भी ऐसा पल ना आए कि हमारा प्रभु यीशु, जिसके लिए हम गाते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, जिसके लिए हम इतने आनंदमयी हैं, आज हमारा जीवन परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन होने के बाद जब आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के संग चलना शुरू कर दिया, आपने डिसीजन ले लिया कि मैंने यीशु के संग चलना है भाई, मैंने ना तो लेफ्ट देखना ना राइट, मैंने मसीह यीशु की तरफ देखना है, ना किसी भाई की तरफ देखना है कि उसके जीवन में क्या गलतियां हैं, उसके जीवन में क्या अच्छेपन है। हमने परमेश्वर की तरफ देखना है कि खुदावन, आप हम पर अनुग्रह करें कि प्रभु जी, आपके वचन की अनुसार प्रभु जी हमारा जीवन हो। तो क्या होता है कि जब भी हम ऐसी कोशिश करेंगे ना, तो हम बाय फेथ योशुआ और कालेब की तरह बन जाएंगे, जहां मूसा की तरह बन जाएंगे। हमने कभी भी, आप घमंड में आकर कोई भी ऐसी बात नहीं करनी कि मानो कि हम भी उन इजरायलियों की तरह बोल दें, क्या परमेश्वर हमसे बात नहीं करता? देखिए, नमूना आपके सामने में है। जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, परमेश्वर का ऐसा क्रोध उनके ऊपर आया ना,
बताया जाता है कि कोढ़ की सजा भी आई है, धरती ने अपना मुंह खोलकर भी कईयों को खा लिया है, और जंगल में से सांप भी आ गए हैं। अब ये तीनों सजाएं जो है ना, ये ऐसी सजाएं हैं कि ये कुदरत ने ही उन्हें सजा दे दी कि वो परमेश्वर के विरुद्ध हो गए। ऐसा हो जाता है। हमें हमें हम उस परमेश्वर को जानते हैं, हम उस परमेश्वर से प्रेम करते हैं जो जीवन देने वाला परमेश्वर है। लेकिन उस जीवन देने वाले परमेश्वर के हाथों में क्या है? दोनों चीजें हैं, एक जीवन है और एक मृत्यु है। मूसा ने, मैं आपके आगे पढ़ूंगा निर्गमन 20 और उसके 20, यहाँ पे लिखा हुआ है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इस निमित्त आज्ञा है कि तुम्हारी परीक्षा करे। कि परमेश्वर इस निमित्त आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे। हमारे मन के अंदर उसका भय होना चाहिए। हम ऐसा कार्य ना करें कि मानो कि हमें कोई भय नहीं है। हमारी बातों से समझ आता है कि हम परमेश्वर से कैसा प्रेम करते हैं। हाँ, कुछ देर तक तो हम चुप जाते हैं, जब तक हम चुप रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं तो सारा का सारा मामला सामने आ जाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो परमेश्वर के आगे हमें रखनी पड़ती हैं, लेकिन हम सबके सामने नहीं रख सकते, क्योंकि खुदा ने कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपना दरवाजा बंद कर और मुझसे मांग गुप्त में, मैं तुझे गुप्त में ही दे दूंगा। गुप्त शब्द जो परमेश्वर किस लिए इस्तेमाल कर रहा है? खुदा कहता है तेरा और मेरा ना एक पर्सनल रिलेशन होना चाहिए। देखिए, जब हमारी शादी होती है ना, अब हम में से बहुत से प्यारे भाई बहन शादीशुदा हैं, जब हमारी शादी होती है तो जो हमारी वाइफ होती है ना, उसके संग हमारी बहुत सी बातें होती, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ हमारी वाइफ को पता होता है या फिर हमें पता होता है। किस लिए? क्योंकि वो हमने उसी से ही शेयर की। जैसे ही वो बात किसी तीसरे के हाथ में जाएगी तो क्या हो जाता है? वो बात दुनिया में निकल आती है। हमें परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंपना है कि प्रभु, हम तुझसे बात करना चाहते हैं, परमेश्वर आप हमें सिखाएं। प्रभु अपने दास को इस्तेमाल करेंगे। जहां जहां पर इज़राइल को कमजोरी महसूस हुई ना, उसने परमेश्वर से बात की, सही प्रार्थना की, परमेश्वर ने अपना नबी भेज दिया और उन्हें सुधार दिया। हम इज़राइल से ज्यादा मुबारक है, हमारे पास प्रभु यीशु है। और जो इस पावर को नहीं समझ पा रहा है ना, जो इसको बड़ा हल्के में लेने की बात समझ रहा है कि नहीं फिर क्या हुआ, यीशु है, यीशु तो सबके पास है। भाई यीशु सबके पास है, लेकिन इस धरती पर ना बाइबल में लिखा हुआ है दो प्रकार के यीशु है। एक तो वो यीशु जिसने क्रूस पर कुर्बानी दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग पर उठा लिया गया। एक वो यीशु भी है जिसको यीशु ने ही कहा, मुझसे आने से पहले भी बहुत से मेरे नाम से आए, लेकिन दुनिया ने उनकी नहीं मानी। बहुत से लोग उनके पीछे चले, लेकिन वो स्वर्ग में नहीं पहुंचे। आप याद रखें कि आप जब बाइबल पढ़ते हैं, आपको कौन सा आत्मा गाइड कर रहा है? क्या आपको परमेश्वर का ही आत्मा गाइड कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जब बाइबल को पढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं, कोई ऐसी गलत थॉट आपको देता है, जैसे ही आपको गलत थॉट दे आप समझ जाओ ये उस दुष्ट की तरफ से आया हुआ विचार है। आप उसी क्षण बगैर ब्रेक लगाए, बगैर कुछ रुके हुए परमेश्वर के आगे उस सारे थॉट को गुप्त में रख दो, ताकि आपके जीवन में से उसका जो कार्य है वो कट जाए, उसका कनेक्शन आपके लाइफ में ना रहे। क्योंकि परमेश्वर ने बार बार अपने लोगों को कहा कि तुम कभी भी मूर्ति पूजा मत करना, तुम कभी भी मूर्ति पूजा मत करना, तुम कभी भी छिनाला ना करना, तुम कभी भी किसी की झूठी साक्षी मत देना। क्योंकि जैसे ही तुम कोई पाप करोगे तो पाप के लिए एक नया पैटर्न तुमने खुद ओपन कर दिया है। अब तुम्हें बंद करना तो आता नहीं है, तो क्या होगा? दुष्ट आएगा और अपना कार्य करेगा।
लेकिन जब दुष्ट आकर अपना कार्य करेगा तो आपके पास क्या ऐसा बल है कि आप निकल पाओ? आपको जो ये जीवन मिला है ना, ये बहुत ज्यादा मूल्यवान है। और उससे बड़ा मूल्य यहाँ पर ये आ गया कि प्रभु यीशु ने आपको चुन लिया। धन्यवाद। आप जीवित होते, आपके पास यीशु नहीं होता, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करता रहता। आप जीवित हो, आपने गुनाह किया और आपको यीशु मसीह के बारे में पता लग गया, आपने अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में दे दिया, लेकिन उसके बाद क्या किया? वो पुराना बोझ, वो जो पुराना मनुष्य था जिसको आपको उतारना चाहिए था, जो आपने कन्फेस किया था, जो आपने कहा था कि परमेश्वर हम इसे नहीं अब दोबारा आने देंगे प्रभु, अब हम तेरे नाम में छुप चुके हैं प्रभु, हम आमीन। तेरे संग चलेंगे। लेकिन वो मनुष्य कहीं ना कहीं दोबारा अगर आपको दिखाई दे, दोबारा आपके जीवन में आकर बैठ जाए, तो इसका मतलब क्या है? आपको अपने जीवन की नई शुरुआत करनी ही पड़ेगी। अगर आपने स्वर्ग जाना है, आपको अपने जीवन की सही शुरुआत करनी ही पड़ेगी। आपको कोई भी धोखे में रहने की बात नहीं है। हम उन झोले छाप इंसानों में से नहीं है जो आपको कह दे कि नहीं भाई आप गुनाह करो, कोई बात नहीं, खुदा अनुग्रह करेगा। भाई हम आपको तब ये बोल सकते हैं अगर कल का दिन हमारे हाथों में हो। अगर मेरे हाथों में हो ना, हाँ, कि कल का दिन आपने देखना, तो मैं आपको कहूंगा कोई बात नहीं भाई, आप गुनाह करते रहे। लेकिन मुझे जब खुद पता है कि मेरा नहीं पता मैंने सुबह देखनी है या नहीं देखनी, मैं अपने भाई को गुनाह में देखकर कैसे चुप रहूं? मैं नहीं रह सकता। ये कार्य है एक मसीह का। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनका कार्य ही ऐसा है, वो शिक्षा ही देंगे। उन्हें मत आप रोकिए कि हाँ, कि वो क्यों शिक्षा दे रहे हैं, वो क्यों हमें समझा रहे हैं, वो क्यों हमें डांट रहे हैं। हमारा भाई जसविंदर, प्रभु उस पर अनुग्रह करे, उसने कलाम को जब भी उठाया है ना, तो दूसरों के जीवन में ना जो गुनाह है ना, उसने ये उसको जानकर नहीं बताया कि भाई मैं जानता हूं तो इसलिए समझा रहा हूं। जब भी खुदा की आत्मा ने उसे इस्तेमाल किया है ना, तो लोगों को अपना मुंह आईने में दिखाई दे गया। भाई जसविंदर में काबिलियत नहीं है, मसीह यीशु में काबिलियत है। प्रभु यीशु सबको जानते हैं, पर यीशु मसीह के पास एक ऐसी आशीष है जो आपको स्वर्ग में ले जाएगी। यीशु मसीह के पास एक ऐसी करुणा है जो आपका मार्गदर्शन करेगी। एक ऐसा बादल है जो आपको 40 दिन में आपके सफर में पार करवाएगा। एक ऐसी आग है जो आपको रात को भी, अंधेरे में भी रोशनी देने का कार्य करेगी। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको चलना पड़ेगा। आपको चलना पड़ेगा, आपको खुद अंगीकार करना पड़ेगा। आपको अपनी प्रॉब्लम्स खुद यीशु मसीह के आगे रखनी पड़ेगी कि प्रभु मुझ में ये कमजोरी है। हम में से बहुत से ऐसे हैं लोग जिन्होंने अपने जीवनों में ऐसी गलतियां की हैं कि वो उन गलतियों को आज भी याद करते हैं तो वो अंदर से टूट जाते हैं कि प्रभु तेरा प्रेम इतना महान है कि तूने मुझे उस गुनाह से भी बाहर निकाल दिया। हम सब तो गुनहगार हैं, हमें पवित्रता ही नहीं थी। लेकिन जब हमारे जीवनों में मसीह यीशु आ गया ना, उसके बाद हमारा हर दिन करेक्ट होना, हर दिन सुधरना ही जरूरी है, क्योंकि अब हम जीवन की बातों को जानने लगे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंसान जो है कि वो सारी ज्ञान की बातों को जानता है लेकिन वो नरक में चला जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंसान जो कि बहुत मेहनत करता है लेकिन उसमें आलस आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर अपने लोगों को अपने वचन से ही समझाता है, खुदा अपने कलाम से ही बताता है। मैं आपसे कलाम की और बात शेयर करूंगा। और मैं पहला यूहन्ना 1 और उसकी
9 और उसकी मैं 10 आयत आपके आगे पढ़ूंगा। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करेगा। यदि हम अपने पापों को मान ले तो खुदा हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सब अधर्म से शुद्ध करेगा। मैं विश्वास योग्य और धर्मी और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है कौन? परमेश्वर। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं। देखिए, बहुत दफा ना हम बाइबल में कुछ ऐसी बातें देखते हैं कि बहुत से ऐसे इंसान हैं जिनको उनकी कोई गलती नहीं थी लेकिन उनके मुंह पे चपेड़े मार दी गई। एक खुदा का दास हुआ, उसका कत्ल हो गया। किसमें? अगर आज की मैं शब्दों में बात करूं तो मान लीजिए कि चर्च के अंदर ही उसका कत्ल हो गया, और अगर मैं उस समय की बात करूं तो हैकल के अंदर उसका कत्ल हो गया। देखिए, परमेश्वर के भवन में जाते हुए भी इंसान उस पाप से नहीं बच पाया, उसने पाप को कर दिया। इंसान आज परमेश्वर के भवन में जब जाता है ना, उसको समझ होनी चाहिए कि मैं अपने पिता से बात करने जा रहा हूं। मेरा पिता आज तक क्या कभी ऐसा कभी हो सकता है कि आपने कुछ मांगा और खुदा ने ना आपको दिया हो, या खुदा ने आपकी ना सुनी हो? मेरे जीवन में तो ऐसा कभी नहीं हुआ, और मैं जहां तक जानता हूं आपके सबके जीवनों में ऐसा कभी नहीं हुआ जितना मैंने आपको जाना है। इसका मतलब परमेश्वर तो सच्चा है। कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की उस दया को कमजोर साबित करने की कोशिश में लग जाते हैं कि नहीं, खुदा नहीं सुनता। यहां पर क्या लिखा, मैं दोबारा आपके लिए पढ़ूंगा। यदि हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया तो परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। उसको झूठा ठहराते हैं। किसको? परमेश्वर। और उसका वचन हम में नहीं है। अब जब हम वचन को पढ़ते हैं ना, तो वचन तो हमेशा ही हमें डाउन टू अर्थ करता है, हमेशा हमें झुकने के लिए बोलता है, हमेशा हमें कहता है कि नहीं, आपने सहना है। एक शब्द आया है ये संडे भी मैंने इस शब्द पे बहुत फोकस किया था भाई, तो खुदा का आत्मा इस्तेमाल कर रहा था। सहभागिता, बहुत अच्छा शब्द है सहभागिता, लेकिन किसमें और कैसे? शब्द अच्छा है सहभागिता, कि हम भी यीशु मसीह के जी उठने में सहभागी हों, खुदाबंद के कोड़े खाने में हम भी सहभागी बने, हम भी खुदाबंद के संग दुआओं करने में सहभागी बने। लेकिन कैसे? क्या हमारे जीवन में कोई ऐसा पल आया है कि हम यीशु मसीह की तरह ही हम दुआ करते हुए नजर आए, यीशु मसीह की तरह ही हम प्यार करते हुए नजर आए? परमेश्वर ने कहा कि सहभागिता जो है ना, वो पहले तो सहना है, फिर सहते हुए मसीह में भागी होना है। शब्दों को थोड़ा सा खोल कर जब हम पढ़ेंगे ना, तो हमें कुछ और क्लैरिटी मिलती है, थोड़ा सा और हमें आत्म बल मिलता है, ताकि हम उन बातों को समझे कि परमेश्वर ने जो हमें ये जीवन दिया है ना, जो बड़ा ही ज्यादा बहुमूल्य है, बड़ा ही सीरियस टॉपिक है। इसमें कभी भी छोटी बात ना समझे कि हम परमेश्वर के पास हैं और हम गुनाह में पाए, हम गुनाह करें और हम यहाँ तक कि माफी भी ना मांगे। नहीं, खुदा का आत्मा अगर इसी समय आपके आगे आ जाए, और हम में से जो गुनहगार है वो तो खड़ा तक भी नहीं रह सकता, वो खड़ा तक भी नहीं रह सकता। उसके जीवन की उसी समय वो जो जीवन में उसके अंदर की आत्मा वो भाग जाएगी, क्योंकि उसके अंदर गुनाह है। हमें तो बड़ा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु जी, कई लोग प्रभु आज का ये समा नहीं देख पा रहे प्रभु। उनके डॉक्टर ने बोल दिया कि भैया इसके पास 2 दिन है,
जाओ इसकी सेवा कर लो। और बहुत से हमारे में डॉक्टर भाई बहन है, उनको पता है कि पेशेंट कैसे रोते हैं, कैसे तड़पते हैं। आप मसीह में हो, आप मसीह की मोहब्बत में हो, आपको खुदा ने अपना आत्मा दे दिया है। आपके लिए खुदा ने कहा कि मैं अपनी आग आपके लिए भेज दूंगा। अब आपको कैसा जीवन परमेश्वर दे कि आप उसमें आगे बढ़ो। भाइयों, हम तो परमेश्वर में जलने वाले ऐसी रोशनी होनी चाहिए कि मानो कि दूसरों को रोशन कर दें। हमें लेकिन हम तो दूसरों को भी अगर जल रहे हैं ना, तो हवा वाला काम कर देते हैं कि भाई वो बुझ जाए, कि वो जले ना। क्यों ना जले? क्योंकि अगर वो जलेगी तो क्या हो जाएगा? दूसरे उससे रोशन हो जाएंगे। हमें तो दूसरों के संग मिलकर जलना है। ऐसी ऐसी टेस्टमनी है जो बहुत ज्यादा बल देती है, जिससे ना बड़ा ज्यादा इंसान एप्रिशिएट होता है, उसको बड़ा आनंद आता है और उसकी आत्मा बलवान होती है। ऐसे फल भी तो है ना, उनको खाना शुरू कर दें हम, उनको पीना शुरू कर दें हम, ऐसे रास्ते पर चलना शुरू कर दें जहां पर हर कदम पर मसीह यीशु हमारे संग हो। हमें जरूरत है, हमारा जीवन ये ऐसे नहीं है कि हम इसमें जो कुछ अपना मन चाहे मुंह से शब्दों को बोल दें, जो मन में आए उन विचारों को दूसरों के आगे रख दें और खुदा कहे कि मैं इन पर हंस रहा हूं, कि मैं इन्हें क्या देना चाहता हूं, कि आओ भाई तुम सोने की सड़कों पर चलो। और ये है कि ये लुक की सड़कों पर भी चलने वाला कार्य नहीं करते। तो हमें समझना पड़ेगा, जीवन को बदलना पड़ेगा। खुदा का वचन एक और इफिसियां 4:26 में बड़ा ही अच्छा शब्द है। खुदावन का पवित्र आत्मा जहाँ पे बात करता है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हम क्रोध कर लेते हैं, कई दफा ऐसा होता है कि हम क्रोध, लेकिन जैसे ही आत्मा हमें भारी पड़ता है तो हमें बता देता है कि नहीं, क्रोध हो गया ठीक है मन में, लेकिन वही शब्द तेरे जैसे ही मुंह से निकला, जैसे ही तूने मुंह से वो तीर निकाला, वो तीर कभी भी वापिस नहीं जाएगा। वो तीर घूमेगा, जब वो घूमता है तो वो कईयों को छेदता है, वो कईयों के जीवन में उतर जाता है। और कई ऐसे भी होते हैं कि वो उन बातों को समझते भी नहीं है, वो भी पूछने को आ जाते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी बात थी कि ऐसी ऐसी हमारे आपस में चाल चलन में बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है। भाई ऐसे कौन से आप प्रेम में हो कि आपको इन बातों की समझ नहीं आ रही? हमें ऐसा नहीं करना, हमें शैतान के तीरों को बुझाना है, ना कि अपने मुंह से उसके संग होकर ऐसे तीरों को निकाल देना है कि दूसरे बंदे का जो जीवन है, अगर वो कमजोर है तो वो और कमजोर हो जाए, अगर वो जल रहा है थोड़ा सा तो वो जलता हुआ भी बुझ जाए। हमें डरना है ऐसा। खुदा कहता है मैं उनसे पूछूंगा जब परमेश्वर बोलेगा। वचन कहता है जब परमेश्वर बोलता है क्या कोई खड़ा रह सकता है? मुझे बताएं आप, कोई खड़ा रह सकता है? कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। आप देखिए, आप सब समझदार हैं, हमें हमें मसीह की सेवा करनी है और हमें पाप नहीं करना, हमें पाप से दूर भागना, पाप से हमें दौड़ना है। हमें हमारा कोई भाई बहन कमजोर है, हमें उसको गले लगाना है, हमें उससे प्यार करना है, ऐसा प्रेम कि मानो वो हमारे शरीर का एक हिस्सा है। लेकिन ये नहीं कि वो गुनाह पे गुनाह करता जा रहा है, हम उसे समझाते जा रहे हैं, वचन उसको दिया जा रहा है और वो फिर भी नहीं समझ रहा, तो फिर एक दिन उसकी डांट तो आएगी। और ये उसकी आत्मा उसे बता रही है कि हाँ, कि नहीं, ये डांट उसके जीवन में उतरेगी ही उतरेगी। मैं नहीं, अगर मेरी नहीं सुनेगा तो कोई और सुनाएगा, कोई और नहीं सुनाएगा तो खुदा का आत्मा 2 दफा तो वार्निंग देगा ही देगा, ताकि आप समझ जाओ। अगर 2 दफा वार्निंग के बाद भी नहीं समझा तो तीसरी वार्निंग परमेश्वर की तरफ से नहीं आती। खुदा 2 बार बचा लेता है, लेकिन तीसरी बार परमेश्वर नहीं बचाता। परमेश्वर ने आपको जीवन देना है, परमेश्वर ने आपको स्वर्ग में लेके जाना है, वहां पर लेके जाना है जहां पर अभी मान लो कि आपके पास अंबानी के जितना भी पैसा आ जाए ना, तब भी आप उस जगह का ना एक सांस का टुकड़ा भी नहीं ले सकते हो। मतलब इतना ज्यादा प्रेम और आनंद है वहां पर, और कभी ना खत्म होने वाली खुशी है वहां पर।
ऐसा पानी है वहां पर कि जिसको अगर हम छुए तो हम आनंद में हो जाएंगे, हम परमेश्वर की रोशनी को देखने पाएंगे। अपने मन में ऐसे चित्रों को कभी भी मत जाने दे, हमेशा इन चित्रों को बनाए रखें, ताकि जैसा खुदा का दास कहता है कि मैं उस निशाने की तरफ दौड़ा जाता हूं ताकि पहला इनाम पा जाऊं। दौड़े, ऐसे दौड़े कि पहला इनाम ही हमने लेके जाना है। लेकिन हमारे संग अगर हमारा मसीह भाई कोई अगर मान लो कि पैर घुटने से उसका छीला हुआ है, या वो कमजोर है, वो लंगड़ा है, उसे पीछे करने की नहीं, उसको भी संग में लेकर चलना है कि भाई आप भी मेरे भाई हो, चलो आओ। मसीह क्या है, मसीह मोहब्बत क्या है, मसीह प्यार क्या है? यही है मसीह प्यार, कि हमने आपस में प्रेम कर कर परमेश्वर की महिमा करनी है। क्योंकि हमें जब एका होगा ना, जब हम एक हो जाएंगे, मसीह को पुकारेंगे, तो मसीह को आना ही पड़ेगा। आमीन। लिखा है, खुदा का कलाम कहता है, और खुदा अपने कलाम से बदलने वाला नहीं। खुदा ने कहा जहां 2 या 3 एक मन एक आत्मा से मुझे पुकारेंगे, मैं वहां पर आ उतरूंगा। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर अपने वचनों से बदलने वाला नहीं है। लेकिन वचन क्या कहता है? भजन संहिता 4 और उसकी 4 में, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन में ध्यान करो और चुपचाप रहो। अपने अपने बिछौने पर, जहां पर आपका घर है, जहां पर आप बैठते हैं, जहां पर आप कार्य करते हैं, मन ही मन आप सोचते रहें कि आप परमेश्वर से कुछ छिपा तो नहीं रहे हैं। कुछ ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर से आपने छुपाने की कोशिश की है, क्योंकि खुदा तो उन बातों को भी जानता है जो आपने अंधेरे में की। जब तक कि आप अपने मदर के पेट में कंसीव भी नहीं हुए थे, उस समय भी परमेश्वर ने आपके ऊपर चित्त लगा लिया था। तो परमेश्वर से हमें भागना नहीं है, हमें परमेश्वर के समीप आना है, ताकि हम और भी आनंदित हों और जीवन में प्रवेश कर जाएं, और हम परमेश्वर के उन हथियारों को पहनना है। खुदा से मांग ले, खुदा से दासों से पूछें कि प्रभु के दास मुझे बता कि मेरी ये परेशानी है, मेरे अंदर ये कमजोरी है, मैं इस कमजोरी में फतह पाना चाहता हूँ। वो बताएंगे, उन्हें क्यों नहीं बताएंगे? और हम सब, मैं खुद कई दफा ऐसी है कि मेरे जीवन में कुछ ऐसे प्रश्न होते थे कि मैं पूछता, मैं आप कोई भी कंप्लीट नहीं है। खुदा अपने दासों को इसलिए इस धरती पर रखता है ताकि परमेश्वर की बातें जो है ना वो और भी बढ़े। परमेश्वर के हम कलाम में पढ़ते हैं कि जब खुदा का दास एलिया था, तो एलिया के संग भी उसकी सेवा टहल करने वाला भी एक दास था। और ऐसे जो एलिया का दास था, उसके आगे भी एक दास था। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि शिक्षा पाने वाले भी कुछ ऐसे होते हैं कि जो सीखना चाहते हैं, जिनका अंदर से दिल होता है कि मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूँ, परमेश्वर से प्रेम करना चाहता हूँ। तो वो अपना जीवन परमेश्वर को देना चाहते हैं कि खुदा, इस जीवन में आपका मनोरथ पूरा हो, प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो। और एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, ये मत्ती 6 और उसकी 1 और उसकी 4 में है। यहाँ पर खुदा का कलाम हमें एक और शिक्षा दे रहे हैं। देखिए, जैसे कि कपटी आराधनालयों और गलियों में कहते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। हमारे यहाँ पे अभी इंडिया में अभी वोटों का टाइम है। अभी हम देख लेते हैं कि बहुत से मंत्री ऐसी ऐसी बातें ले लेकर, किसी से सुन सुनकर, ऐसे ऐसे विचारों से लोगों को क्या कर रहे हैं कि भावुक कर रहे हैं कि वो उनकी तरफ आए। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है ना, वो ऐसा करने के लिए नहीं कहता। परमेश्वर कहता आपने सच ही बोलना है। आपका कार्य है कि आप ये काम करो, पानी दो। मेरी आज्ञा है कि उस बीज में से जीवन निकले ना निकले, उस पर आपका कोई काम नहीं है। वो मेरी आज्ञा है, वो परमेश्वर की ही आज्ञा है। हमें अपने काम पर ईमानदार रहना चाहिए। अगर मान लो कि हमारी खुदा के भवन में आकर अगर एक गीत गाने का कार्य है, हम उसमें ईमानदार रहे, परमेश्वर हमें और बढ़ाएगा।
अगर हमारा काम परमेश्वर के घर में आके किसी को एक गिलास पानी पिलाना है तो हम उस कार्य में ईमानदार रहे। अगर हमारा काम परमेश्वर के घर में आगे खुदा के लोगों को उन श्रापों से छुड़ाना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है, तो हम उस कार्य को ईमानदारी से करें। अगर हमारा कार्य ऐसा है कि कोई भाई कोई बहन कमजोर है और उसे मजबूत करना है, तो वो भाई उस कार्य को करे, जब वो बहन उस कार्य को करे। अगर हमारा कोई बेटा बेटी अगर हमारी शिक्षा नहीं सुन रहा है, तो अपने आगुओं के पास अगर उनके लिए बात करें कि हमारे बच्चे हमारे हाथ से बाहर है। देखिए, बच्चों का आपके हाथ से बाहर जाना ये चीज साबित कर देता है कि कहीं ना कहीं आपका जीवन जो है वो गुनाह में है। ऐसे बच्चे आपसे बाहर नहीं जा सकते। जब आप परमेश्वर के अंडर रहेंगे तो आपके बच्चे भी परमेश्वर के अंडर में आ जाते हैं, क्योंकि आप खुदा से प्रेम करते हैं और खुदा आपसे प्रेम करता है। और खुदा नहीं चाहता कि मेरा प्रेमी जो है कि वो किसी भी बात में चिंता करे। खुदा उसे अपने वचन की बातें बताता है कि मेरे वचन की तरफ तू बढ़। तो हमने कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे हमने आराधना में आना है? लिखा हुआ है कि तुम कपटियों के समान आराधनालयों और गलियों में जो कहते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। देखिए, कलाम कह रहा है कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरे दाहिने हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे। आपकी कोई पर्सनल ऐसी दुआ है, आप परमेश्वर से शेयर करें। अगर खुदा के आत्मा आपको अगर कह रहा है, अंदर से बोल रहा है कि नहीं, आप अपने आगुदास से या अपने पास्टर से बात, या जो खुदा का बंदा आपको लगता है कि वो परमेश्वर से प्रेम रखता है, आप उससे करें, तो आप उससे करें ताकि परमेश्वर तक आपकी बात पहुंचे और खुदा आप पर अनुग्रह करे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को खुद ही पवित्र ठहराने की कोशिश कर लें। अगर आपने खुद ही, किसी ने, चाहे वो मैं हूं, मैं अपने आप को खुद ही पवित्र ठहराऊंगा तो मेरा परमेश्वर कैसे न्याय करेगा? मैं तो पवित्र नहीं हूं, मुझसे तो गलतियां होती हैं और मैं तो मानता हूं मुझसे गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियां भी दो तरह की हैं। इसके विषय में भी मैं आपसे बात कर ही देता हूँ। ये लिखा हुआ है पहला यूहन्ना 5 उसकी 16 और 17 में। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि कोई अपने भाई को ऐसे पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे। किससे विनती करें? परमेश्वर से। परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का धर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु है। ऐसे भी पाप है जिसका फल जो है वो मृत्यु है। हम में से कोई भी अभी ऐसा कोई पाप नहीं करता कि हम दूसरे भाई को, जो हमारा प्यारा भाई है या हमारी प्यारी बहन है, अगर मान लो वो हमारे द्वारा दिए गए संदेश से अगर वो आत्मा से नहीं भर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी हम अपने से दूर गए भाई को कभी भी शैतान ना कहें। क्योंकि मैंने कईयों के मुंह से ऐसे सुना कि वो दूसरे अपने प्यारे भाई बहनों को, जिनके संग कभी उन्होंने बैठकर इकट्ठा खाना खाया, उसे शैतान बोल देते हैं, जबकि शैतान सीधा परमेश्वर से झगड़ने वाला है। तो वो भाई का झगड़ा तो उसी से हुआ ना, तो वो उसको तो ना बोले ना। परमेश्वर न्याय करता है। परमेश्वर न्याय के दिन इन बातों को भी आपसे पूछेगा कि भाई आपको ये अधिकार किसने दिया? वो बोलेगा कि प्रभु जी मैंने तो बोल दिया। वचन कहता है कि वो परमेश्वर पूछ लेगा, वचन में कहाँ पे लिखा है? वचन में लिखा है कि उनका मन मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। खुदा कहता है कि तुम किसी न्याय करने में शीघ्रता मत करना। परमेश्वर कह रहा है कि मैं न्याय करूंगा। सब बातें खुदा के आगे रखी हुई हैं। खुदा अभी भी सब कुछ देख रहा है, आपके मनों में जो चल रहा है।
खुदा किसी से भी ये नहीं कि हाँ कि मैं एक ही से प्रेम करता हूँ और बाकियों से परमेश्वर नफरत करता था। खुदा इजराइलियों से भी प्रेम करता था और खुदा मूसा से भी प्रेम करता था, लेकिन खुदा चाहता था कि ये अपनी गलतियों को स्मरण करे और परमेश्वर के पास आ जाए और कह दे कि खुदा हम कमजोर हैं प्रभु, हम में से बहुत से ऐसे शब्द हमारे मुंह से निकल जाते हैं प्रभु, हमें नहीं पता लगा, हमें नहीं गाइड किया गया, पर प्रभु हम तेरे डर में आते हैं प्रभु जी, तुझसे प्रेम करते हैं प्रभु, प्रभु तेरे संग मिलना चाहते हैं। और प्रभु अगर तू ही हमें ना सिखाएगा तो कौन सिखाएगा प्रभु जी, हम तेरे ही तो बच्चे हैं, तेरे ही तो स्वरूप में। और परमेश्वर ऐसा है कि परमेश्वर क्रोध करने में धीमा है, परमेश्वर शफकत करने में घनी है, परमेश्वर अनुग्रह करने में तेज है। हमें प्रभु से प्रेम करना पड़ेगा, प्रभु के पास आना पड़ेगा, अपनी प्रार्थनाओं को सुधारना पड़ेगा और परमेश्वर के संग ईमानदारी से ही चलना पड़ेगा, गुनाह को छोड़ना पड़ेगा। ये सारी शिक्षा आप में होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि हाउ टू एंजॉय विक्टोरी मसीह या क्रिश्चियन लाइफ, कि हम कैसे परमेश्वर के उस अनुग्रह भरी जीवन शैली को जी सकें इस धरती पर। तो क्या होता है, प्रेयर लाइफ है, बाइबल स्टडी है रेगुलर, और फास्टिंग है, और इसमें है फेथ टू रियल गॉड, मतलब सही असल परमेश्वर पर ईमान रखना, संगति करना, सच बोलना, गलत थॉट से हमेशा लड़ते रहना कि मैं गलत थॉट को नहीं आने दूंगा अपने भाइयों में, अपनी बहनों में, अपने बच्चों में, और सांसारिक अभिलाषाओं से युद्ध करते रहना, कभी भी अशुद्ध ना होना, कभी अशुद्धता में ना रहना, ये हमें करते रहना पड़े। प्रभु आपको बरकत दे, परमेश्वर आप पर दया करे, और उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर ने आपसे कुछ बात की होगी ताकि आप परमेश्वर के वचन में और भी आगे बढ़ पाए और एक दूसरे का हाथ पकड़े। और हम सब, मैं भी आपके संग हूँ भाइयों, ये सारा वचन विशाल के लिए भी है, ये नहीं कि विशाल के लिए नहीं है। तो हम सब ऐसे ही बढ़ेंगे क्योंकि हमें सिखाया जाता है। मैं शायद आपको थोड़ा सा रूटली लग सकता हूँ कि मैं थोड़ा सा रूटली कई बार बोल जाता हूँ, आपको लगता होगा कि लेकिन मैं क्रोध से बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आप सबसे प्यार करता हूँ, आप सबको जताने के लिए नहीं, लेकिन हम सब परमेश्वर के सेवक बनना चाहते हैं, हम सब परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। हमारी अपनी इच्छा इसमें आगे ना आए, हमारे अपने शरीर के कार्य इसमें आगे ना आए, नहीं तो हम कमजोर पड़ जाएंगे, नहीं तो हम कई जीवनों को जिनको हमने बचाना है हम नहीं बचा पाएंगे। परमेश्वर की एक उम्मीद है हमसे, परमेश्वर चाहता है कि ये मेरा बच्चा ये कार्य करे। एक चलो एक छोटी सी बात और शेयर करता हूँ, फिर हम भाई के संग प्रार्थना में जाएंगे। एक पास्टर है जिनकी ना 2 टांगे नहीं है, 2 बाजुएं नहीं है। अगर वो भी हमारी तरह ही कई बार ऐसा है कि वो सोच लेता है कि नहीं मैं कुछ ना कर पाऊंगा, मैं परमेश्वर की मैं अपने आप को खुद ही अच्छा साबित करने की कोशिश करूंगा। वो देखिए उस भाई के जीवन को देखिए कि उसके दोनों पाँव नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर में इतने लोगों को बदल चुका है ना, वो इतने लोगों को खुदा का कलाम दे चुका है। हमें तो ऐसे भाइयों की जरूरत है कि जिनके पास जो रिक्वायर्ड सोर्स होते हैं, इंसान के बेसिक सोर्स होते हैं एक बॉडी के, वो ना होने के बावजूद उन्होंने परमेश्वर में ऐसी अनथक मेहनत की कि आज बहुत से लोग उनके जरिए परमेश्वर तक पहुंच गए। लेकिन हम तो अपने जीवन से ही ऐसा संघर्ष करने में अभी जुटे हुए हैं कि दूसरों के जीवन को तो संवारने की भी बात ही दूर है। तो हम बदलेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़ेंगे और हमारा पिता आज हमारे लिए आशीष को भेजेगा। आप सबको सलाम, प्रभु आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी, आपको प्रभु आशीष और बरकत दे इस अच्छे कलाम के लिए, इस अच्छे मैसेज के लिए। प्रभु आपको ब्लेस करे।
और भरे प्रभु, आपको और ज्यादा भरे, ताकि हम और सीख पाए। खुदावंद आपको ब्लेस करे, हम सभी को ब्लेस करे प्रभु, आशीष दे। अब हम भाई सिस्टर मैरी डेविड के साथ आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। सिस्टर मैरी डेविड। धन्यवाद 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 खुदावन यीशु मसीह आपका है इस सुंदर वचन के लिए जो आज भाई विशाल ने प्रचारा। प्यारे प्रभु जी, ये भाई विशाल ने जबकि आपका था प्यारे प्रभु जी, आपका ये वचन हमारे हृदय की पटियों पे लिख दे प्यारे प्रभु जी, और हमारे अंदर जो भी कमी घटी है प्यारे प्रभु जी, तो उसको पूरा कर प्यारे प्रभु जी। अगर कोई कमी है तो उसको निकाल के और अपने वचन से उसको भर दे प्यारे प्रभु जी, और हमारे हृदय कान का खतना कर। कोई बुराई है पाई जाती है तो यीशु मसीह वो हमारे शरीरों से निकल जाए प्यारे प्रभु जी। जो आज्ञा तेरी इस वचन में है उसको हम पूरा करें प्यारे प्रभु, और तेरे वचन को आगे रखते हुए बढ़ते चले जाए प्यारे प्रभु जी। क्यामत का रोज नजदीक है प्यारे प्रभु जी, और जो वचन में लिखा हुआ है वो पूरा हो रहा है यीशु मसीह। प्यारे प्रभु जी हमें तैयारी दे प्यारे प्रभु जी रैप्चर की, ताकि हम तेरे वचन में लिपटे और बने रहें प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु, हम यहाँ 2 या 3 से ज्यादा हैं तो हमारे बीच में है, और ये धन्यवाद की भेंट हम तेरे चरणों में डालते हैं प्यारे प्रभु जी। ये तो अपने वचन से हम सबको भरा आज के लिए, इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। ये अब हम तुझसे क्या मांगे, इस छोटी सी प्रार्थना को सुना कबूल कर। आमीन। आमीन। प्रभु आशीष दे।